قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ابھی ہم ٹک ٹاک کے اوپر لائیو براڈ کر رہے ہیں اور ابھی آج ڈیٹ ہے 31 اگست 2025، شام کا ٹائم ہے، رات کا ٹائم ہے اور رات کے تقریباً کوئی 8:45 ہوئے۔ موضوع ہے ہمارا چھوٹا مرزا اور بڑا مرزا، یعنی مرزا جونیئر جہلمی اور مرزا سینئر غلام قادیانی، اور ہم ثابت کریں گے کہ جناب ان دونوں مرزوں کے عقائد اور نظریات ایک برابر ہیں، ان دونوں کی جو تعلیمات ہیں ایک جیسی ہیں، ان دونوں کی کرتوتیں ایک جیسی ہیں، یہ ہم نے ثابت کرنا ہے اور اس موضوع پر ہماری براڈ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پر ایک اعلان میں نے دینا، چونکہ ہماری ٹک ٹاک کی ہر براڈ ریکارڈ ہوتی ہے اور اس کو پھر ہم اپنے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز اور فیس بک کے آفیشیل پیج وغیرہ کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ وارننگ میسج میں دینا چاہتا ہوں اور اطلاع دینا چاہتا ہوں، وارننگ کہہ لیں یا اس کو اطلاع کہہ لیں، کہ ہمارا چونکہ جو بیانات ہوتے ہیں یا ہمارے جو لیکچرز ہوتے ہیں یا ہماری جو براڈز ہوتی ہیں یا ہماری جو مناظرے ہوتے ہیں، ڈیبیٹس ہوتی ہیں، یہ ٹوٹلی جو ہے وہ مرزا سینئر غلام قادیانی اور مرزا جونیئر جہلمی کے متعلق ہوتی ہیں۔ تو ان دو کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ان کی جو غلط چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، ان دونوں کی جو غلط چیزیں ہوتی ہیں، جو فحش قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، جو غیر انسانی جو رویہ ہوتا ہے، جو کرتوتیں ہوتی ہیں، جو غیر انسانی افعال ہوتے ہیں، ان کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور جب ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یقینی سی بات ہے بچے نہیں سن سکتے، خواتین نہیں سن سکتی، تو یہ ہماری جو گفتگو ہوتی ہے یہ بچوں کے لیے یا خواتین کے لیے نہیں ہوتی، تو یہ آپ میسج ہمیشہ کے لیے یہ اپنے پاس سیو کر لیں، محفوظ کر لیں، اور یہ ہماری ہر ویڈیو کے اوپر آپ نے یہ اپلائی کرنا ہے کہ بچے ہماری ویڈیو سے دور رہیں، خواتین ہماری ویڈیو سے دور رہیں، اور بڑے بھی جب ہماری ویڈیوز کو سنیں تو ہینڈ فری لگا کے سنیں تاکہ آواز بچوں تک نہ جا پائے، خواتین تک وہ آواز نہ جا پائے۔ کئی لوگ بڑی سکرین کے اوپر ہمیں سنتے ہیں، تو بڑی سکرین کے اوپر بھی اس ٹائم ہی سنیں کہ جب کمرے کے اندر بڑے لوگ بیٹھے ہیں، جب بچے ہیں یا خواتین ہیں تو بڑی سکرین کے اوپر ہماری ویڈیو نہ دیکھا کریں۔ یہ ایک میسیج تھا جو میں نے وقتاً فوقتاً دیتا۔ السلام علیکم شاہ صاحب جی ایک کالر آئے ہیں جی، وعلیکم السلام جناب۔ میں کہنا تھا فرقوں کی دکانیں بند، ڈیمیج ہیز بین ڈن، تو میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تواڈے بابے تا شے ہی کوئی نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اچھا مرزا سینئر صاحب کی پہلے بات کر لیتے ہیں اور مرزا جونیئر جہلمی صاحب کی بعد میں کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ چلے گئے آپ؟ یہ قادیانی تھے جناب یہ قادیانی تھا یہ بندہ جو ہے، وہ دیکھیں جب مرزا سینئر کی بات کی ہے تو دوڑ گئے، ڈڑکی لگا دی۔ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بات کریں، سامنے بیٹھ کے بندہ بات کرتا ہے، یا کوئی ہم کو گالیاں تو نہیں نکال رہے، کوئی بد کلامی تو نہیں کر رہے، ہاں جی، بندہ بات تو کرے کم از کم یار۔ ہاں جی کالر آئے ہیں، کافی آ گئے، وہ تھوڑیاں خیر، ڈبل ٹیپ کرنا ہے بھائی، ڈبل ٹیپ کرنا ہے، سارے دوستاں نے کھچنا ہے براڈ نو ذرا کھچو ذرا،
ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਜਨਾਬ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम हजूर। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬਰਾੜ ਸੰਭਾਲੋਗੇ? जी जी हजूर इंशाअल्लाह। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੂਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ गया। जी जी हजूर। और बच्चे और खवातीन हमारी वीडियो से दूर रहे। चले जी, पार्टी शुरू करेंगे। जी ठीक। आ चले जाओ भाई, भाई डेढ़े लगो। सिलसिला है, एक एक कॉलर आएगा और एक एक कॉलर जो है ना वो आके सवाल करे, जवाब ले। जी अबू अहमद साहब आए हैं जी। अस्सलाम जी वालेकुम। अबू साहब तशरीफ लाए हैं जनाब। जनाब बोलिए जनाब। हबीब साहब उंगली रखी दी हुंदी है कि एक एक 2-3 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਿਰਫ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ। ਕਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਪਵੇ ਤੇ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ। हबीब साहब सुनो, पहले पहले गल सुन लो सबर तहम्मुल नाल। जी मैं हजूर समझ गया। नहीं तुसी नहीं समझ रहे ना, बार बार समझा रहे हैं तुहानू समझ नहीं आ रही तुहाडे। जी ठीक है हजूर। जी कॉलर आए हैं अस्सलाम जनाब। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं कोई सवाल नहीं करना है, सिर्फ मैं आपकी आवाज़ सुननी थी, आपसे गुफ्तगू लाइव बात करनी थी, सलाम करने आया हूँ। बहुत अच्छा माशाल्लाह काम कर रहे हैं। और सेकंड नंबर पे आपका ना, आज से कुछ साल पहले मैंने एक कादियानी को आपने मुसलमान किया था यूट्यूब पे, तब स्काइप पे आपकी कॉल चलती थी। जी हाँ। तो वो मैंने आपका प्रोग्राम बड़े साल पहले वो सुना था। तो अब आप इनसे माशाल्लाह टिकटॉक पे भी आते हैं, तो मैं आपको सुनना सलाम करना था। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन मैं तो हंजीरों को जो है ना, 2-3 साल से टिकटॉक पे आ रहा हूँ, तो आज आपने देखा है? मैं असल में ना मैं बहुत कम टिकटॉक पे आता हूँ। तो एक और ब्राड है, वहाँ पे भी जो है ना ये हंजीर जो है ना कादियानी और ये मिर्जे इल्मी किताबी जो है, इनको जो है मुझे फॉलो दिखाते हैं किया ना। आपने? हाँ मैंने आपको फॉलो किया, मैं आपकी ब्रॉड पे आता हूँ ज्यादा। और सबसे ऊपर एक दिल का निशान बना हुआ है, उसके क्लिक किया है? नहीं उस पे नहीं मैंने क्लिक किया। अब वो करे ना, टीम का हिस्सा हो जाएंगे आप। ठीक है मैं सारे कर दोस्त, लेता हूँ। जितने दोस्त बैठे हैं यार, हमारी टीम का हिस्सा भी बन जाए। जी जी इंशाल्लाह मुफ्ती साहब, इंशाल्लाह मैं जरूर करूंगा। बहुत खुशी हुई है आपसे बात करके। अल्लाह ताला सलामत रखे आपको और आपको लंबी जिंदगी दे। ठीक है, थैंक यू। अभी इनको पकड़े, इनको का काम करते रहिए। बस बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही। बिल्कुल। हाँ जी। खत्म नबूवत जिंदाबाद। इनको लटकाएं, मैं बस आपका टाइम नहीं ज़ाया जज़ाक करूंगा। अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। बहुत अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। अगले कॉलर को लीजिए जनाब। अच्छा, इल्मी बात करनी है किसी ने, और किसी जनाब मुकद्दसात की तौहीन नहीं करनी, मुकद्दसात की तौहीन नहीं। ठीक है। अगली बात ये कि हमारी फौज की तौहीन, हमारी पाक फौज की रत्ती बराबर भी कोई लफ्ज किसी ने कोई बोला ना, रत्ती बराबर भी, तो समझा जाएगा कि ये रा का एजेंट है, ये मुसाद का एजेंट है, ये कोई गैर मुस्लिम है। वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता। पाकिस्तानी हो पाकिस्तानी और कभी हमारी पाक फौज के खिलाफ बोले, हो नहीं सकता। हमारी पाक फौज जिंदाबाद है, हमारा वो दिल है, जान है, हमारा सर का ताज है, और हमारी आन है, हमारी शान है, हमारा मान है, हमारी पाक फौज। ठीक है जी। तो ऐसी कोई काम ना करें कि आपको फिर वो काल से नीचे उतार दिया जाए, या कोई आपके ऊपर कोई सख्त एक्शन लिया जाए। जी ये कोई दोस्त आए हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, पहले तो आपको जो है तो मुबारकबाद पेश करनी है कि जो बात आप पता नहीं कई सालों से कह रहे हैं, आज सबको पता चल गया कि ये गुस्ताख है। बिल्कुल। तो इसके लिए तो आपको आपकी मेहनतें, और आपने लोगों को समझाया तो लोगों ने इस चीज़ को बारीकबीनी से देखा। हालांकि ये पहले भी कई दफ़ा कर चुका है, लेकिन आपकी काविशें कि आपने जो है तो इस बंदे को इतना एक्सपोज किया कि अब वो जो है ना, वो अब अपनी चालाकियों में ना छुप नहीं सक रहा था मजीद। तो ये जो है तो ये आपने, मैं असल कहता में हूँ हमने जीवन भाई लोगों को सिर्फ इतना बताया है क्योंकि हमने मुताला किया हुआ था कादियानियत का, कादियानी किताबों का, मिर्जे कादियानी की करतूतें सारी हमें पता थी।
अब हुआ ये कि वो करतूतें, यानी जो कादियानी किताबों में पढ़ी थी हमने, वो करतूतें जब हम किसी ऐसे शख्स के मुंह से सुनते थे कि जिसने लिबादा इस्लाम का ओढ़ा हुआ था, पग बांधी हुई है, दाढ़ी रखी हुई है, किताबें भी 4 रखी हुई हैं, लेकिन वो बोली कादियानियों की बोल रहे, उसको हमने पकड़ लिया। हमने कहा बिल्कुल। तू बोली तो सारी तू वो बोल रहा है। ये हुआ है और कुछ नहीं हुआ, नहीं, इसमें साथ में हमारा आपने और कोई ये कमाल मुफ्ती नहीं। साहब, जी आप शायद भूल गए होंगे हमें, लेकिन मैं आपके साथ काफी नशिस्त में बैठा भी हूँ, और आप हमेशा ये बात कहा करते थे कि ये अपना फिरका लॉन्च करेंगे। जी हाँ जी। इसने अपने वो जो इसके जो लोग थे वो भी फिरका आपने लॉन्च हो बताया चुका है कि ना। फिरका एक ग्रोह को कहते हैं, एक तबके को कहते हैं, एक जमात को। फिरका तो लॉन्च हो चुका है, फिरका चल रहा है, बिल्कुल। फिरका और उनका जब चल रहा है। उनके फिरके के नुमाइंदे, उस फिरका जहलमियत के, जिनको हमने नाम दिया है, टाइटल दिया है मरज़ई। पहले तो कादियानियों को हम मरज़ई कहते थे, कादियानी और मरज़ई एक ही थे। लेकिन अब जब से मिर्जा जूनियर जेलमी का फिरका बना है, तो उस वक्त से हमने कादियानियों को, यानी अहमदियों को कादियानी कहना शुरू कर दिया है, और जहलमियों को मरज़ई कहना शुरू कर दिया है। तो ये हमने 2 नाम अलग अलग कर दिए। अब जब एग्जैक्टली हम मरज़ई का लफ्ज बोलते हैं तो उससे मुराद होती है हमारी मिर्जा जूनियर जेलमी का फॉलोअर। कादियानी जब बोलते हैं तो उससे मुराद होती है मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी का फॉलोअर। जी शायद इसीलिए मुफ्ती साहब ये जो है, तो ये कादियानियों को काफिर भी नहीं समझता। इसने आपने एक वीडियो भी इसकी चलाई थी जिसमें ये उनको अहले किताब कहता है ये। जी हाँ जी हाँ, बड़ी वीडियो है जनाब। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुफ्ती एक आधी साहब। वीडियो आए हो दिन। तो फिर है ना जी जनाबे जी मोहतरम, इधर तो तंद नहीं, की आंदे ने तानी तानी तंद नहीं, तानी बिगड़ी है। सही। और एक और सवाल था मेरा, थोड़ा फनी भी है, लेकिन आपको कैसे पता चल जाता है ना, मतलब बंदा खुद को दूसरे फिरके से बता रहा होता है, आपको कैसे पता चल जाता है ये बंदा लानती कादियानी? आप ये देखे ना, फर्क कैसे पता चलता है? ये ऐसे पता चलता है, आप है ना, माइक म्यूट करिएगा। आप है ना, आपने नाम G1 रखा है, हमें नहीं पता कौन है। एक घोड़े की पता नहीं तस्वीर लगाई है, हमें नहीं पता कौन है बंदा, हम नहीं जानते। उसका लबो लहजा, उसकी गुफ्तगू बताती है बंदा मुसलमान। वो नफरत रखता है, कुफर से नफरत रखता है, वो फेवर नहीं करता, हमायत नहीं करता। हम आपको कह सकते हैं कि आप मुसलमान हैं, हमें नहीं पता आपका फिरका कौन सा है, उसका हमें नहीं, मकतबे फिक्र से हमें कोई लेना देने। आप सुन्नी हैं, शी हैं, वाबी हैं, देवबंदी, हमें कोई, बंदा मुसलमान है भाई, बंदा आशिक रसूल है भाई, बंदा कोई आशिक रसूल है जो कि हजूर के बेअदबों से नफरत रखता है, उनकी हमायत नहीं कर रहा, उनका दिफा नहीं कर रहा। आपकी गुफ्तगू का लबो लहजा हमें बताता है। एक बंदा आता है, कॉलर आता है, वो कहता है मैं मुसलमान हूं, उसका स्टाइल होता है गुफ्तगू का। सबसे पहले अपना तारुफ करवाएगा, मैं सुन्नी हूं, मैं बरेलवी हूं, मैं देवबंदी हूं, वाबी हूं, मैं शिया हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं खत्म नबूवत पे यकीन रखता हूं, मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर लानत डालता हूं मैं। ये सारे काम करने के बाद ना वो कहता है मगर मिर्जा जूनियर जेलमी जो है ना वो गुस्ताख नहीं, मगर इंजीनियर भाई जो है वो तो मुसलमान है और बहुत दीन की एक खादम, मगर आप जो बात कर रहे हैं ना ये ठीक नहीं कर रहे। वो अगर मगर लगा के ना वो काम तो वो ही कर गया। ये स्टाइल होता है, ये हम लबो लेजा हमें बताता है बंदा दाल चुक काला है, कुछ है। समझ आई कि नहीं जी? G1 भाई को गल समझ आई कि नहीं आई? अल्लाह पाक आपकी जिंदगी करे मुफ्ती साहब। 2 सेकंड में आपने मेरे आंसू जारी हो गए। आपने इतनी प्यारी बात कही। वाकई मुफ्ती जो है ना, ये अल्लाह का करम है, हर कोई नहीं बन सकता। आपने बिल्कुल ना उस जगह पे मुझे टच किया है ना, जो मेरी बहुत, जैसे कहते हैं ना कि रेड लाइन है। ओ भाई मैं बाबा जी मुसलमान अल्लाह पाक खुश रखे चरसी आपको। होए, मवाली होए, जानी होए, शराबी होए, गुंडा होए,
کوئی ایویں بدماش ہوئے, کوئی چول جئی ہوئے, زمانے دا لکھا ترین آدمی ہوئے, لیکن ہوئے مسلمان تے حضور نہ عشق نہ رکھے. یار انج ہو سکتا؟ انج ہے وے یار, ہے وے انج؟ اس زمانے دا کٹیا ترین انسان جنوں کہہ سکنے ہاں, ٹھیک ہے چلو او دا ایک فیل ہے, لیکن وہ گستاخ نہیں ہو سکتا, وہ گستاخی برداشت بھی نہیں کر سکتا. بے شک. پتہ کی یہ, پتہ کی گل سنو, کل ہی میں ایک گل کدھرے پڑھی ہے, بڑی سونی مینوں گل لگی ہے. گل ہے لکھی سی کہ اپنے اعمال کو, اپنے افعال کو, اپنے اعمال کو عشق رسول سے دو ڈالو. گل سمجھن والی, سبحان اللہ. یعنی اپنے اعمال نو, اعمال تواڈے گندے نے, گندے نے, تسی لچے لفنگے ہو, من لینے آ حضور جی اسی لچے لفنگے جے, حضور جی اسی لچے لفنگے ہاں, حضور جی اسی کمینے ہاں, گندے ہاں, سانو منظور ہے, اسی قبول کرنے ہاں, لیکن حضور جی تواڈے وفادار ہاں. حضور جی تواڈے بارے اسی ایک لفظ بھی نہ ہی سن سکنے ہاں تے نہ ہی کہنے ہیں, صرف ایک عشق رسول جے ساڈے کول, بس. کیا بات. او دے سارے زندگی بسر کر رہے ہیں. سانو نہیں پتا سانو جنت ملنی ہے, دوزخ ملنی ہے, اسی حوراں ملنیاں نے یا حورے ملنے نے, سانو نہیں پتا. سانو صرف اتنا پتا ہے حضور جی تسی خوش ہویا جے, بابا جی تسی خوش ہویا جے, بابا جی تہاڈیاں عظمتاں نو سلام ہے, بابا جی تہاڈیاں نسلاں نو سلام ہے, تہاڈی آل اولاد دیاں خیراں ہون, تہاڈے دین دیاں خیراں ہون. تے بابا جی اسی پتہ نہیں کدھر جانا, سانو نہیں اتنا نہیں پتا. تے بس عشق رسول ہی تے ہے وے ساڈے کول, ہور کی ہے یار؟ بے شک کچھ بھی نہیں. عشق ہور ہے رسول کوئی چیز ہے وے یار جی. نماز اسی کوئی نہیں پڑھدے یار, روزے اسی کوئی نہیں, چوری چکاری ادھر ادھر بڑے گندے کام نہیں انسان کرتے, مسلمان کرتے نہیں. انسان جو ہے انسان ہے, انسانی ناطے نال وہ غلطیاں کر لیندا ہے یار, وہ فطرت ہے, وہ گناہ وہ دی فطرت دے وچ ہے, گناہ وہ دی فطرت دے وچ, وہ دی سرشت دے وچ شامل ہے. بھول چک ہو جاندی ہے کوئی گل نہیں, لیکن حضور نال وفاداری کرنی ہے بھائی, بے وفائی حضور نال نہیں, حضور دی آل نال نہیں, صحابہ نال نہیں, اولیاء اللہ نال نہیں, اللہ دے بندیاں نال نہیں, بے وفائی. ٹھیک ہو گیا نا جیون. کیا بات ہے مولوی صاحب, کیا بات ہے مفتی صاحب. اور بات جو سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ ہمارے آپ کی بات سے جو میں سمجھا ہوں, میں صرف کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے, کیونکہ میں نے آج بہت بڑی بات سیکھی ہے آپ سے, کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ وہ ہمیں جنت میں لے کے جا سکیں, کیونکہ ہم گنہگار ہیں. ہم کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے, سود سے لے کے زنا تک, اور ہر, لیکن ایک حرارت ہے جو عشق رسول ہے, جو عشق اہل بیت ہے, بس اسی کا اثر ہے, وہی جو ہے تو ہمیں بچا سکتی ہے. اور یہ ظالم لوگ جو ہے تو یہ بھی ہم سے چھیننا چاہتے ہیں, ہمارے ذہنوں میں مختلف وائرسز ڈال کے, گمراہ کر کے. اور اسی لیے شاید اللہ پاک نے فرمایا کہ خطوات شیطان کا, کہ شیطان کے قدموں سے بچو, کیونکہ یہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جاتے ہیں. ایک دم تو نہیں کہتے کہ معاذ اللہ جو ہے تو یہ نیا فرقہ ہے اور یہ نیا پیغمبر آ گیا, لیکن یہ اسی طرح کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو ہے تو آپ کے دلوں میں پہلے بابوں سے محبت ختم کرتے ہیں دلوں میں, پھر اصحاب کرام سے پیر کرتے صاحب ہیں. ذرا سنبھالیا جے براڑ, میں تھوڑی دیر چاہ رہا ہوں. جی حضور ٹھیک. جزاک اللہ مفتی صاحب, میں صحیح سمجھا ہوں نا آپ کی بات کو؟ جی آپ صحیح. جزاک اللہ. اوکے مفتی صاحب, انشاءاللہ تعالی میں بیٹھتا ہوں نیچے, آپ مزید کالرز کو لیں. تھینک یو سو ویری مچ. ٹھیک ہے جی, چلے جی آئے جی. جی بھائی بولیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. مفتی صاحب میں جیون بھائی کے پیچھے آیا تھا اور آپ کی بات سے سن رہا تھا. جیون بہت بھائی اچھی بات کی آپ نے. اچھا جیون بھائی کے پیچھے, اچھا
तो आप नहीं कोई बात करेंगे, कोई आप नहीं हिस्सा डालेंगे? माशाल्लाह हम आपकी बातें सुन रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा। तो इंजीनियर मिर्जा और मिर्जा गुलाम कादियानी दोनों के मुतल्लक आपका क्या ख्याल है? कोई हमें भी रोशनी डालें, हमें भी बताएं जी। इन दोनों मिर्जों के मुतल्लक आप क्या कहती हैं, आपके क्या ख्यालात हैं जी? भाई इन दोनों पर लानत भेजे, अल्लाह की लानत है इन दोनों पे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो। अच्छा जी, आप फिर ना मेरे भाई नीचे बैठ जाए ताकि नए किसी कलर को हम उठा लें, क्या ख्याल? ठीक है जी। जजाक अल्लाह, जजाक अल्लाह। ठीक। अच्छा जी, अभी सब अगले कलर को उठाइए जी, आ जाए भैया। रिजवी साहब हबीब साहब, तरीका कार ये होता है, पहले बंदे को नीचे उतार के अगले को उठाती हैं। पहले बंदे को नीचे उतार के अगले बंदे को फिर उठाना है। हबीब साहब जी ये लो, तो मैं बार बार समझाता जे। हाँ जी जरूर। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, यासीन भाई आ गए जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर की हाल है, ठीक हो तबीयत? जी अल्लाह सोने दा फजल है जनाब, फरमाओ। बस सलाम करना है था, मैं सलाम कर रही है। अच्छा जी, ठीक है। बाकी लानत ना दोवां मिर्जियां ते दोवें करोड़ वारी, हाँ बिल्कुल ठीक हो, साडे ते करोड़ वारी असीं लानत पाने ना दोवां मिर्जियां ते। बिल्कुल। ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕੈਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਐਸਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਅਵਲ ਦਾ ਚਾਂਦ ਚੜਿਆ ਤੇ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा जी, अच्छा जी, बिल्कुल है ਪੀਰ ਫੈਜ਼ਲ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਪੀਰ ਫੈਜ਼ਲ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। अच्छा अच्छा। जी जी। अच्छा सारे दोस्त कैसी अल्लाह दी करनी है कि कैसी अल्लाह दी करनी है, शैतान रब्बी अव्वल दा चांद चढ़िया ते कैद हो गया। हाँ अल्लाह दियां करनियां। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बिल्कुल। सारे दोस्त डबल टैप करें, ब्राड को शेयर करें, डबल टैप करें ज्यादा से ज्यादा। बस हस्बैंड यासीन भाई आपकी तो और बात है? नहीं कोई मसला नहीं, आप उतार सकते हो मुझे। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्ताद मोहतरम क्या हाल है, ठीक है? जी आए, कॉल डालें, कॉल डालें, कॉल डालेंगे, जो कॉल डालेगा उसको ऊपर लिया जी जाएगा। वालेकुम सलाम शाह जी, मैंने माइक म्यूट कीता सी ते वो बच्चा आया सी, ओदे नाल गल कर रहा सा जी। शाह जी की हाल है जी? से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, दुआवां तुहाडियां उस्ताद मोहतरम। अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह सलामत अल्लाह फरमाए। अच्छा जी, कलर चुको भाई, आओ जो भाई कलर आओ भाई, डबल टैप करो ते मौजू साडा ओही रहेगा, मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी ते मिर्जा जूनियर जेलमी। इन्हां दोवां दे अकायद ते नजरियात, ठीक है जी। मौजू इहो ही रहना है, मौजू नहीं साडा बदलना, ठीक है जी। ते क्योंकि पिछले कुछ दिनों तो असी मिर्जा जूनियर जेलमी नूं फड़िया सी ते मिर्जा सीनियर नूं छड्डिया सी, ते अज उहनूं भी बन लिया है ते पटा पा छड़िया ओहदे गले च भी। ते हुण असी वापस क्योंकि गेम ओवर हो गई है, वो जेले टुर गया है, बस अन करीब इंशाअल्लाह ताला फांसी की सजा भी बस उन्होंने होनी वाली है। उम्मीद तो है वैसे महीने के आखिर तक फांसी लग जाएगी उन्होंने, ते या हो सकता है कोई 15-20 मिनट दिन उत्ते हो जान, ते वो कहानी खत्म हो गई है, गेम ओवर हो गई है। ते तां वास्ते असी हुण वड्डे मिर्जा जी उन्होंने भी पटा पाने की कोशिश कर रहे हैं, ते उन्हों का भी मौजू नाल ऐड कर छड़े, शामिल कर दे। है गल आ जाओ भाई, आ जाओ जिन्हें ऊपर आना कॉल पाओ भाई, कॉल पाओ भाई, आ जाओ। ते नाले किसी ने कोई फांसी फूंसी तो बचाना हो तो भी आ जाओ, कोई नाले तरीके भी दसो जी किंज बचेगा, कोई ऐसा कोई फार्मूला, कोई ऐसा कोई नुस्खा, कोई ऐसी कोई चुटकली, कोई ऐसी कोई पुड़ी, कोई ऐसा कैप्सूल कि जेह्ड़े जरिए दे नाल तुसीं उहनूं बचाना है, वो भी जरा दस्सिया जे सानूं आके। हाँ जी आ जाओ भाई, आ जाओ। मिर्जा सीनियर वाले आ जाओ ते मिर्जा जूनियर जेलमी वाले आ जाओ, आओ तबलीग करो भाई, तबलीग करो। शाह जी पार्टी शुरू करो भाई। जी सादे मोहतरम, ये सादे मोहतरम मेरे को मॉडरेटर है वहाँ सारी पावर आनी है, कोई थल्ले को आ गया हो जा वो बंदा ब्लॉक कर देंदा उन्होंने।
ਉਹ ਇਹ ਪਾਵਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਲੋ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਕਾਲ ਤੇ आओ जिन्हें गल करनी काल ते आके करो, थल्ले टिप टिप ना करो, थल्ले बह के ते डबल टैप करो। डबल टैप करो, बराड़ चुको ते नाले यार आओ कोई तबलीग करो। मर जाओ, की हो गया जे कादियानियों? ओए कादियानियों मर जाओ। यार मैं गया जे एक बयान करन ते वो बयान जेड़ा है बड़ा जबरदस्त हो गया है ते बच्चे बच्चे बैठे सन ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਏ। ਕਾਲਰ ਆਏ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਯਾਰ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ? ਕੋਈ ਨੈਟ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਵੇ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ। ਉਸਤਾਦ मोहतरम ने ਹਾਂਜੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ वुल्फ भाई जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम जी। अल्लाह जी मुफ्ती साहब की हाल है? ठीक ठाक हो? जी अल्लाह का शुक्र जनाब जी। हाँ जी मुफ्ती साहब, ब्रॉड डी मैं सुनी है ते मैंने ते पता नहीं भी की मसला चलन दिया। मिर्जा की नाम है ओदा, जेलमी। हाँ अच्छा, नहीं आपको जनाब नूं नहीं पता? हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਉਹ ਸਾਹੀ ਗੁੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਬੇਬਾਹ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾਖੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ 295 ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਾਂਸੀ ਬਸ ਲੱਗਣੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਹੱਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੱਕ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਸਤਗਫਰ ਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਵੀ ਲਵੇ ਨਾ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮਿਲਣੀ ਮੁਲਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਐਸਾ ਵੇ 295 ਸੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਵੀ ਲਏ ਨਾ, ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਕਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੂਫੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਫਾਲੋਇੰਗ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਫਾਲੋਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ, ਐਥੀਇਸਟ ਨੇ, ਦਹਿਰੀਏ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਮੁਖਾਲਫ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਫਾਲੋਵਰ ਦਾ ਲਿਬਾਦਾ ਉੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਫਾਲੋਵਰ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਹਿਦੀਨ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਯਕਦਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸਾਜੇ? ਹਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਇਹਦੀ ਆਈ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਸੈਕਸ। ਅਸਤਗਫੁਰullah ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹੈਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਵੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਫਿਰ ਬੜੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਛੋਕਰੇ ਟਾਈਪ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਹੋਈ ਗੇਮ, ਇਹ ਹੋਈ।
ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਈਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। जी हाँ टोटली टोटली। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਪਰ ਨਾ ਜ਼ੇਨ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। अच्छा अच्छा। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਤਮਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਡਾਊਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੁੜਿਆ ਵਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। अच्छा 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 ठीक है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਫਾਲੋਅਰ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अब अल्लाह का शुक्र अदा करो। ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। जी हाँ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ जी, ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ बहुत ਤੁਸੀਂ। शुक्रिया जी, आप जनाब का भी बहुत शुक्रिया जनाब। इंशाल्लाह फिर होगी। जी 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 जरूर जनाब जरूर। एक किताब है असहाबे अहमद नाम की किताब है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। आतिफ भाई, मुबशर भाई जान, एक बात करनी है आपसे। जी आतिफ भाई फरमाए जनाब। वो नीचे खान साहब रो रहे हैं, उनको तो उठाओ यार, उनको तुम उठा नहीं रहे। जिन्होंने बात करनी है वो आप उठा नहीं देते। आतिफ भाई पहले आप बात कर ले, उनको बाद में उठा लेंगे हम। मैं ये कह रहा था कि जब बाढ़ तो 295 का तो ये भी बाजी जाएगा इसमें। रजब भट्ट आवाज कट उसमें तो गई। 295 सी भी थी उसपे, वो तो बच गया। किस पे? रजब भट्ट पे वो तो बच गया था। हाँ असल में पता है कि रजब भट्ट आपको पता है कहाँ पे है? जी पता है, तब वो यहाँ पे था जब उसपे 295 सी लगी थी। नहीं नहीं नहीं, आपको गलत इतला किसी ने दी है। नहीं नहीं, हम उसके व्लॉग देखते हैं, उधर ही था जब वो जमानतों पे भी जाता रहा तो सब निकालता रहा। आपने गलत बात कही है, मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, आपको इतला किसी ने गलत दी है, गलत अच्छा। इन्फॉर्म की। जी हाँ गलत इन्फॉर्म। ठीक हो गया। वो ना वो तो बाहर भागा हुआ है और वो भी गया, वो भी गया है। ओए अभी नहीं गया वो यार, शुरू दिन से हम उसके केस को हैंडल कर रहे हैं, देख रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। आप क्या बातें हमें बता रहे हैं? अच्छा मैं कह रहा हूँ कि वो पहले का भागा हुआ है। जी मोहब्बत से गुजारिश है, चलें ये तो क्लियर है। वो नीचे खान भाई हैं, उनको उठा लें, वो बहुत देर से लगे हैं, जिन्होंने बात करनी है वो उठा ही नहीं रहे भाई उनको। जी आते भैया आपने अपनी बात कर ली है तो फिर नीचे एक बंदे को असल में एक वक्त में हम उठाते हैं। चलें खान भाई को उठा लें, मैं जा रहा हूँ। जी बड़ी कॉल ही नहीं डाल रहा खान, कॉल ही नहीं डाल रहा। जी जी और बड़े कॉलर आए। अच्छा मैं आपको बताने लगा था कि ये मिर्जा, जिस तरीके से मिर्जा जूनियर जेलमी ने 313 अपने सहाबी बनाए थे, ऐसे ही मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी ने सबसे पहले अपने सहाबी बनाए थे। ठीक है, मोहम्मद कादियानी ने कहाँ खता खाई है जिससे ये मैं आपको आपने उस ओ यार भाई रुक जा यार। अच्छा ये कॉलर आए हैं, पहले इनकी कॉल ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जी जनाब। ये जो मेरी उसने मिर्ज़ा वो क्या कहते हैं, ठीक है उसका नॉलेज थोड़ा सा ज़्यादा ही एग्जैगरेशन, मतलब बढ़ा चढ़ा के बातें कर जाता है मिर्ज़ा जेलमी, लेकिन उसने ख़ुतबे नबूवत का इनकार तो नहीं किया। अच्छा फैज भाई जरा रुकिएगा जरा, हमें थोड़ी सी ना हवाला देना है तो हवाला दे लेते हैं उसके बाद। ठीक है जी। अच्छा ये वाली वीडियो पहले देख लें। करामत, हालांकि मुझे तो नहीं पता था ये सारे स्टूडेंट्स बनने वाले हैं। ठीक है, जिसमें नबी इस्लाम के वो 7 हाकचार यार थे ना, तो ये मेरे 7 हाकचार यार हैं। अंडरस्टैंड इस्लाम, ठीक है, ट्रू मुस्लिम, मुस्लिम ओनली और हदाया पोर्टल। बिल्कुल माशाल्लाह अब तो अशरफ मुबशरा भी हो चुके हैं, आप लोग भी शामिल हैं। और ये माशाल्लाह 313 क्या कितने आगे माशाल्लाह लोग ऐड होते जा रहे हैं। अब ये माशाल्लाह 313 क्या कितने आगे माशाल्लाह लोग ऐड होते जा रहे हैं। और ये माशाल्लाह 313 क्या कितने आगे माशाल्लाह लोग ऐड होते जा रहे हैं। ये असल में 313 साहबी सबसे पहले मिर्जे कादियानी ने बनाए थे। ये देखें, ये कादियानियों की किताब है,
313 असहाबे सिद्को वफा, ये कादियानियों की किताब है और ये नसरुल्लाह खान नासिर आसम जमाली ने लिखी है और ये कादियानियों की वेबसाइट से ये ली गई है। इसकी फहरिस्त के अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये 313 सहाबा की उसने लिस्ट दी है और ये वही मुफ्ती सादक है, जिक्र खबीस किताब जिसने लिखी थी और जिसके अंदर मिर्जा कादियानी की सारी करतूतें लिखी हुई हैं। तो ये भी मिर्जा कादियानी का सहाबी उसकी लिस्ट के अंदर शामिल है। अच्छा, ये आगे बढ़ते हैं। आखिर में मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वाला जो बंदा है ना, ये 313वां जो सहाबी है मिर्जा कादियानी का, मियाँ हजरत मियाँ करीमुल्लाह साहब सार्जेंट पोलस जेहलम, ये वाले बंदे के बारे में आता है कि ये मिर्जा जूनियर जेलमी का पड़नन है, यानी माँ की तरफ से ये, यानी मिर्जा कादियानी का ये सहाबी था ये बंदा। तो ये कौन है मिर्जा जेलमी का? पड़नाना। तो ये तो मतलब कहाँ से आपने ये सोर्स लिया कि उसका पढ़नाना है? ये आप जैसे ही किसी मिर्जा जूनियर जेलमी के सहाबी ने बताया था। नहीं, वो तो बता दिया, झूठ भी तो हो सकता है। आपने कंफर्म किया कि वो ठीक है या नहीं है? नहीं, ये कन्फर्म तो थोड़ी करते हैं, कन्फर्म तो नहीं ना करते। तो कंफर्म नहीं करते तो ऐसे ही कह देते हैं कि मैं आप किसी को उठ के कह दूं कि इसका फलाना जो है वो उसका नहीं, कन्फर्म देख ले, कन्फर्म करते हैं कि नहीं। सोर्स क्या आपका? नहीं, कन्फर्म पहले कुछ बताएं तो सही, कन्फर्म करते हैं कि नहीं? क्या चीज भाई ये एक चीज है, कन्फर्म करनी चाहिए कि नहीं? ये आप कह रहे हैं कि ये उसका पढ़नाना है मिर्जा जेलमी का? आप बताइए, चीज को कन्फर्म करना है कि नहीं? नहीं, ये नाम पे मैं उसकी अगर किताब में लिखा हुआ आप दिखा रहे हैं, चलो ये नाम ये ठीक है। कन्फर्म करना है कि नहीं बताए, इतनी बात अभी बताए, अभी बताता हूँ, अभी करना, ओके, करना है। अच्छा, सिर्फ ये एक चीज ही कन्फर्म करनी है कि हर चीज ही कन्फर्म करनी चाहिए? मतलब कि ये नाम जिसका लिखा हुआ है वो उसका रिश्ता जो है वो मतलब जो चीज भी सुनी जाए, अभी आपने मुझसे सुना है ना, तो आप कह रहे हैं जी इसको कन्फर्म करें। तो जो भी आप चीज सुनते हैं उसको कन्फर्म करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए, बिल्कुल। ये इंसानों वाली ये बात है। ठीक है, बिल्कुल। हूं जरा साह ले, आज जरा चुप करके। अच्छा, हम ज्यादा दूर नहीं जाते, सिर्फ इस वीडियो के ऊपर ही रहते हैं। इस वीडियो की कंफर्मेशन चाहिए, सुन लीजिएगा जरा। ये हर चीज कंफर्म करनी है अब हमने। ये बंदे दो कौन है? खामोश रहिए, अभी वीडियो मैंने चलाई नहीं है। ओके, तो ये जो मेरी करामत, हालांकि मुझे तो नहीं पता था ये सारे स्टूडेंट्स। पहली बात उसने किया, ये मेरी करामत है। ये आपने मिर्जा जूनियर जेलमी की करामत कंफर्म करनी है, इसका सबूत चाहिए। ठीक है, ये पहली चीज होगी। एक चीज बनने वाले हैं, ठीक है, जिसका नबी इस्लाम के वो 7 हाकचार यार थे ना, तो ये मेरे 7 हाकचार यार। ये दूसरी चीज है, ये आपने कंफर्म करना है और इसका सबूत देना है कि जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हाकचार यार थे, उसी तरीके से मेरे साथ हाकचार यार है। ये कंफर्म आपने करना है और करवाना है। अच्छा, लेकिन एक मिनट, जरा माइक जरा म्यूट। अभी वीडियो चल रही है, अभी तो मेरी बात चल रही है, अभी तो मेरे सवाल आते हैं। भाई बात अभी पूरी वीडियो तो पूरी कर लेने थे मुझे। अभी तो ये इब्तिदा में यहाँ पहुंची है वीडियो, यहाँ तो मैं उसके ऊपर सवालात कायम कर रहा हूँ। जरा माइक म्यूट करें। अब बीच में हूँ हाँ ही हूँ करते रहेंगे तो अगलों को बात समझ नहीं आनी। माइक जरा इनका भी साथ थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दें। इन्होंने ना बोलते जाना है बीच में, तो वो ना अगले बंदे को कुछ नहीं समझ आनी कि बात हुई क्या, सवाल क्या हुआ था, क्या जवाब हुआ था। सुमामा भाई माइक म्यूट करें जी। अच्छा जी, ये दो चीजें हो गई हैं। इसने अपना तकाबुल जो है नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करवाया है कि जिस तरीके से हजूर अलैहिस्सलाम के साथ 4 सहाबा थे, यानी हक 4 यार, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन।
تو وہ 4 حق 4 یار کی اس نے کہا کہ میرے ساتھ بھی حق 4 یار ہیں، اپنے 4 یوٹیوب کے چینل وہ بتاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے اب کنفرم کرنا ہے کہ کیا ایسا کسی قرآن کی آیت یا کسی حدیث میں ہے کہ 15ویں صدی کے اندر جا کے ایک شخص آئے گا جو کہ میرے ہم پلہ ہوگا، میرے ہم برابر ہوگا، میرے جیسا ہوگا، اور وہ یوٹیوب کے چینل ہوں گے 4، تو وہ ایک چینل ابو بکر صدیق کے برابر ہوگا، دوسرا عمر فاروق کے برابر ہوگا، تیسرا عثمان غنی کے برابر ہوگا، چوتھا مولا علی کے برابر ہوگا۔ یہ کنفرم اب آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کا اصول ہے اور دستور ہے کہ کنفرم کرنا ہے بھائی، کنفرم کرنا ہے۔ اب وہ 4 اس کے جو حق 4 یار ہیں ان کے نام سنیے گا۔ انڈرسٹینڈ اسلام، ٹھیک ہے جی، ٹرو مسلم، مسلم اونلی اور ہدایہ پورٹل، بالکل ماشاء اللہ۔ اب تو اشرا مبشرہ بھی ہو چکے ہیں، آپ لوگ بھی شامل ہیں، اور یہ اب تو اشرا مبشرہ بھی ہو چکے ہیں۔ اشرا مبشرہ وہ تھے جن کو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر رہ کر ہی جنت کی بشارت دی تھی کہ یہ جنتی ہیں، 10 لوگ، یہ 10 جنتی ہیں، حضور نے فرمایا ہے۔ وہ حضور کے فرمان کی وجہ سے اشرا مبشرہ ہیں۔ اور مرزا جونیئر جیل میں وہ پہلے تو اس نے اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کی نشست کے اوپر براجمان کیا، اور پھر اپنے اس نے اشرا مبشرہ بنائے، اور ان 2 لڑکوں کو وہ کہہ رہا ہے کہ تم بھی شامل ہو اشرا مبشرہ کے اندر۔ یہ مرزا جونیئر جیل میں کے اشرا مبشرہ کے 2 بندے ہیں، 8 بندے رہتے ہیں، وہ پتہ نہیں کون سے ہیں، ان کا ہمیں نہیں پتہ۔ کم از کم وہ کہتا ہے کہ یہ اشرا مبشرہ بھی اب ہو چکی ہیں جن میں آپ بھی شامل ہیں، یعنی یہ 2 لڑکے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی آپ نے اب کنفرم کرنا ہے۔ یہ تھا میرا چوتھا سوال گنتے جائیے گا، 4 سوال ہو گئے، آگے سنیے۔ ماشاءاللہ 313 کیا کتنے کہتا ہے 313 بھی میرے ہو چکے ہیں۔ 313 کون سے تھے؟ وہ بدری صحابہ تھے، بدر کے صحابہ۔ اور اگر دیکھا جائے حضور علیہ السلام کے صحابہ کو، تو سب سے اول نمبر جس کا آتا ہے نا، وہ آتا ہے جناب صحابہ کے اندر سے سب سے پہلا نمبر جو آتا ہے وہ حق 4 یار کا آتا ہے، یعنی خلفائے اربع کا آتا ہے۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر جن کی فضیلت ہے نا، وہ یہی بدری صحابہ ہیں 313، جن کا تذکرہ ملتا ہے کہ یہ ان کے بعد یہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو وہ یعنی یہی 313 اپنے جعلی صحابی بنائے تھے مرزا غلام قادیانی نے، ٹھیک ہے؟ اور یہی اپنے 313 جعلی صحابی بنا رہے ہیں مرزا جونیئر جیل میں۔ آگے وہ کہہ رہا ہے مزید حضور علیہ السلام کے جتنے صحابہ آگے بڑھتے جا رہے تھے نا، میرے بھی آگے صحابہ بڑھتے جا رہے۔ یہ سنیے، ماشاءاللہ 313 کیا کتنے آگے ماشاءاللہ لوگ ایڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ آپ نے مقدمہ سن لیا میرے بھائی۔ اب یہ تقریباً 6-7 سوال ہو گئے ہیں، اب ان سب کی کنفرم آپ نے کرنا ہے جی۔ اب کنفرم کرنے شروع کر دیں جناب، اب آپ بولیں۔ جی مائک پٹو بولو تے صحیح، کچھ کنفرم کرنا سی تساں، یہ تے ایک چیز بھی کنفرم نہیں کرتے پہ تسی۔ ہاں جی بولے۔ اچھا یہ آصف موجود ہے؟ جی استاد محترم موجود ہے۔ یہ فیض بھائی سے کنفرم کروائیے گا ذرا، بقایا گفتگو سن لی آپ نے؟ جی جی استاد محترم ان سے ذرا کنفرم کروائیے گا جناب، میں مائک میوٹ کرنے لگا۔ نہیں تو یہ جو 313 والی اس نے بات کی ہے، یہ تو میں اکثر ہی سنتا رہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ مثال دیتے ہیں، انڈیا پاکستان کی بھی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ 313 کو 1000 پہ فتح حاصل ہوئی تھی، تو ہم بھی تعداد میں کم ہے تو ہم بھی یہ کر لیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پاک فوج کو کوئی چیف کو کوئی ہم نے رسول بنا دیا، آرمی چیف کو۔ تو یہ تو نسبت کے ساتھ ایک
بات کر دی کہ یہ تو فیضی بھائی دیکھیں یہ بات کرتے ہیں کہ ایک نہیں کرتے آپ کہ کو یہ جو 313 فٹ کر رہے ہیں نا، بات سن لیں کیا کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ جو جنہوں نے جنگ جیتی ہے یہ عشرہ مبشر ہیں یا یہ بدری صحابی ہیں؟ یہ کسی نے کہا ہے آج تک کہ جنہوں نے انڈیا سے جنگ جیتی ہے یعنی حالیہ دنوں میں؟ یار ایک منٹ ذرا بات سن لے، بات کر لینے دینا۔ کیا کسی نے یہ بات کی ہے کہ یہ جن لوگوں نے حالیہ جنگوں میں حصہ لیا ہے انڈیا کے ساتھ، یا 65 کے اندر یا 71 کے اندر یا اس کے بعد بھی، کیا کسی نے یہ کہا ہے کہ ان میں سے فلاں جناب یہ جنرل صاحب جو ہیں یہ عشرہ مبشر ہیں یا یہ جو ہیں یہ بدری صحابی ہیں؟ یہ کسی نے کہا ہے؟ دیکھیں یہ آپ ایک باطل، ایک منٹ ٹھہر جائے نا محترم، ایک منٹ ذرا بات مکمل ہو لیجیے کرے۔ آپ کو جلد بازی کس چیز کی ہے؟ کس چیز کی جلد بازی ہے؟ آپ کو بات جوڑے تو صحیح نا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بانگمتی نے کنبا جوڑا، آپ کہاں کی بات کہاں پہ جا کے ملا رہے ہیں؟ عشرہ مبشرہ وہ صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سامنے اپنی حیات مبارکہ میں ان کو بشارت دی کہ فلاں بھی جنتی ہے، فلاں بھی جنتی ہے، فلاں بھی جنتی ہے، فلاں بھی جنتی ہے۔ مرزا انجینئر صاحب کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے یا یہ نبی علیہ السلام کے منصب کے اوپر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فائز ہو گئے ہیں؟ یہ آپ نے بتانا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو صحابی بنانے والی یہ جو ہے نا سنت، یہ مرزا قادیانی کی سنت پہ اس نے عمل کی ہے۔ مرزا قادیانی نے بھی اپنی کتاب کے اندر 313 صحابیوں کی لسٹ جاری کی ہوئی ہے، اور یہ دوسرا مرزا ہے بر صغیر کے اندر۔ یہ دیکھیں یہ کانسیڈنس کیسا ہے، یہ دیکھیں ذرا آپ، پہلے مرزا گزرا ہے 100 سال پہلے، اس نے اپنے صحابیوں کی لسٹ جاری کی 313، اور کوئنسیڈنس دیکھیں کہ اسی سرزمین کے اوپر بر صغیر کے اندر ہی 100 سال کے بعد ایک اور مرزا پیدا ہوا جس نے اپنے صحابیوں کی لسٹ جاری کی۔ اس نے بھئی سوال تو آپ سے یہ کر رہے ہیں، اس کی تصدیق کون کرے گا کہ اس کے جو صحابی ہیں یہ عشرہ مبشر ہیں، حق 4 یار، اس کی تصدیق کون کرے گا؟ کون سی قرآن کی آیت سے اس کی تصدیق ہوگی؟ کون سی حدیث مبارکہ سے اس کی تصدیق ہوگی؟ وہ بتائیں ہمیں۔ تو کوئی جو مفتی کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اس نے کوئی نسبت دی ہے تو وہ اس اور انداز میں اس کو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے، تو کسی اتھینٹیکیٹڈ مفتی کو بٹھا کے آپ آن لائن مناظرہ کیوں نہیں کر لیتے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس نے گستاخی نہیں کی۔ اگر کوئی مفتی ہے آپ کے مرزا انجینئر نے کو تیار کیا ہے 15 سال میں تو اسے لائیں سامنے۔ اچھا آصف بھائی ذرا ان سے، فیض بھائی سے ذرا یہ بھی کنفرم کروا لیں کہ یہ کون سے مرزا جونیئر جیلمی کے صحابہ کے درجے کے اوپر فائز ہیں، حق 4 یار میں سے ہیں یا عشرہ مبشرہ میں سے ہیں یا 313 میں سے ہیں یا جو بڑھتے جا رہے ہیں ان میں شامل ہیں، تو یہ 4 میں سے کس درجے پہ فائز ہیں؟ آصف بھائی یہ سوال بھی ایڈ کر لیں۔ نہیں جی استاد محترم، جی فیضی بھائی آپ اپنا بھی تعین فرما دیں کہ آپ اس کے جو صحابہ کی جو لسٹ ہے جو بڑھتی جا رہی ہے نا، اس کے اندر آپ کون سے درجے پہ فائز ہیں؟ حق 4 یار، عشرہ مبشرہ، 313، یہ جو بڑھتے جا رہے ہیں؟ نہیں مجھے نا آپ اس میں انوالو کریں، میں اس میں اس چیز میں نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس کی ایک اس نے انوالو کیا نا فیضی بھائی۔ دیکھیں میری بات سنیں، آپ کے جو استاد محترم ہے نا، استاد محترم نے آپ کو اس میں انوالو کیا، ہم نے نہیں کیا۔ نہیں میرا استاد محترم نہیں ہے، لیکن وہ میرا مطلب اپنا ایک جو وہ اس بات پہ جو باتیں کرتا تھا کہ یہ مطلب مزارات وغیرہ پہ جو سجدے وغیرہ ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں، تو یہ غلط چیزیں ہیں، مطلب یہ میں مانتا ہوں، یہ اس کے آنے سے پہلے ہی میں ان چیزوں کو مانتا ہوں کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ نہیں آپ مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں آپ؟ نہیں میں کیوں اس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں تو ویسے اس کو یوٹیوب پہ مطلب سنتا رہتا ہوں۔ استاد محترم وہ تے ہن اودا اسٹوڈنٹ ہی نہیں تے ہن ہے تے کرو کی کریے۔ یہ دیکھ لے آج پھر ایک دفعہ اور عاجز کی آج سے 5-7 سال پہلے کہی ہوئی بات سچی ثابت ہو گئی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، ہم نے کہہ دیا تھا پہلے کہہ دیا تھا کہ بھائی ایک دن آنے والا ہے جس طریقے سے مرزا غلام قادیانی کے فالورز کو جب ہم پکڑتے ہیں تو وہ انکار ہی کر دیتا ہے کہ ہم تو مانتے نہیں ہیں مرزا قادیانی کو، تو ہم تو اس کے فالور ہیں ہی نہیں۔
तो ये देख ले यार, एक मिनट जरा फैजी भाई बात तो करने देना हमें, ये बात गलत है, हमें आप बात मुझे करने दें, कोई बात नहीं, कोई आप कर लीजिएगा, आप जितने मैं आपको कादियानी कहूंगा यार, कोई कह ले आप, थोड़ा सा हमें बात तो करने कह ले आप, वो कौन सा आपने माफ करना है हमें। तो एक आ गया ना, वो दिन आ गया ना, मैंने जो कहा था कि एक दिन आने वाला, ये इनकार ही कर देंगे, हम उसको जानते नहीं, मानते ही नहीं है, ये देख लें जी। आसफ भाई करिए बात इनसे। तो रही बात फैजी भाई, आपने गालियां पेट भर के आप गालियां निकाल ले, कोई मसला नहीं, हम सुनेंगे, आपने जो कहना चाहते आप कहिए जी। आसफ भाई करिए इनसे बात। जी फैजी भैया आप गुस्सा ना करें, मेरा भाई इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है, हमको आपके दुश्मन नहीं है, ये तो हकायक है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। अगर हमारी बात में, हमारी गुफ्तार में आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है जो कि झूठ पे मबनी है, तो अभी ये देखें यहाँ पे आप सोशल मीडिया के ऊपर आपको कई प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सुना जा रहा है, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, आपको कितने प्लेटफॉर्म के ऊपर सुना जा रहा है, और ये रिकॉर्डेड वीडियो बाद में यूट्यूब के ऊपर भी चली जाएगी। आपको अगर कोई भाम है हमारे को किसी बात के ऊपर, आपको शक व शुबह है ना, आप बयान करें यहाँ पे। अगर हमारा कोई सवाल गलत है हमें बताएंगे ये सवाल गलत है। जी फैजी भाई। जी फैजी भैया मौजूद हैं? फैजी भाई नाराज हो गए? नहीं नाराज नहीं हुआ, सुने मेरी बात। क्या कहते हैं, बात ये है कि इधर मुझे एक हिंदू ने एक सवाल किया था कि हम लोग मंदिरों में जाके चादरें चढ़ाते हैं, सजदे करते हैं, आप लोग वो मंदिर शंदर बाद में करते हैं हम। फैजी भाई एक ऐलान करना है, ऐलान जरा आप मंदिर चादर बाद में मंदिरों के ऊपर चढ़ा लीजिएगा, मुझे ऐलान कर लें। बाद में आप जी भर के मंदिरों के ऊपर चादर चढ़ाइएगा, आपको मैं नहीं रोकता। नहीं मैं नहीं चढ़ाता जी रुक तो जाए, तो मुझे ऐलान तो करने दे भाई, ऐलान तो कर ले। देख ले फैजी भाई लड़ाई शुरू कर दिया, देख ले फिर जनाब। आजज के छोटे छोटे रसाइल का सिलसिला जारी है, और पहला रिसाला ये आया था अकीदा खत्म नबूवत और कादियानियत। अब ये दूसरा रिसाला आ गया है अकीदा हयात मसीह और कादियानियत। तो ये रिसाला भी हमने जब इशात सानी इसकी हुई है, पहली इशात के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद हमने छपवाई थी, तो वो तकसीम हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी मैंने आज बिल्टी लेके आया हूँ, बहुत बड़ी तादाद इसकी भी छपवाई है, ये पहले की, और साथ ही साथ इस दूसरे की भी एक बहुत बड़ी तादाद हमने छपवाई है। 16 सफ़े का रिसाला है, कोई बड़ा नहीं। ये रिसाला हमने लिखा है, और ये रिसाले लिखने का जो सिलसिला हमने जारी किया है उन लोगों के लिए कि जिनके पास वक्त नहीं है, वक्त की कमी है, वो मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ सकते। ये रिसाला हमने बच्चों के लिए लिखा है कि जो बच्चे छोटी छोटी कहानियां या छोटी छोटी वो चीजें बड़े शौक से पढ़ते। साथ ही हमने हर रिसाले के अंदर ये कर रहे हैं कि अपने रिसाले के आखिर में कादियानी किताबों की असल स्कैन, यानी जिसके हवाले दिए थे ना, वो असल स्कैन भी हाईलाइट हमने लगा दिए। ये देखिए, ठीक है। चलो मैं पढ़ के सुना देता हूं। वो जो मिर्जा कादियानी कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फोत हो गए हैं, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया के 4 जगह के ऊपर कब्र है, 4 कब्रें। तो 4 कब्रों का सबूत इन 4 हवालाजात में हमने दे दिए, असल स्कैन लगा दिए, क्योंकि ये अकीदा हयात मसीह के ऊपर है ना ये रिसाला। अच्छा जी, ये सुनिए, रूहानी खज़ाइन जिल्द 8 सफ़ा 296 का हवाला है, जिसमें वो कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की जो कब्र है बलादे शाम में। रूहानी खज़ाइन जिल्द 8 सफ़ा 299 के ऊपर, जिसमें वो कहता है बलदा कुदस यरूशलेम में कब्र है। रूहानी खज़ाइन जिल्द 15 सफ़ा 55 के ऊपर, जहाँ पे वो कहता है कि हज़रत ईसा की कब्र गिलगित में। रूहानी खज़ाइन जिल्द 21 सफ़ा 351 के अंदर वो कहता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र कश्मीर में है, मल्ला खान यार में।
तो इस तरीके से जो भी बात की हमने स्कैन लगाए, ये देखिए, ये देख रहे। तो मैं समझता हूं कि एक छोटी सी चीज 16 सफ़े के अंदर एक बहुत बड़ा मवाद हमारे एक कारी के हाथ में आ जाएगा। अगर वो किसी कादियानी से सवाल जवाब करेगा, किसी ब्राड पर जाएगा, किसी के साथ बात करेगा, तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, ये ही ऐसे दिखाए, ऐसे ऐसे दिखा दे आप, ये देखो, ये तुम्हारी किताब ही है ना, ये देखो तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है ना। तो इस तरीके से समझ रहे हैं कि तो ये छोटे छोटे रसाइल लिखने का सिलसिला जारी है और छपवाने का सिलसिला भी जारी है। तो आप सारे दोस्तों ने अब तामुन ये करना है, वैसे तो और कोई तामुन आप लोग करते नहीं है, तो ये वाला तामुन करना है कि अपने अपने इलाकों में इसको तकसीम करना है। मेरे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर लीजिएगा, मेरी इसी प्रोफाइल की बायो में जाके देख लें, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। मेरा इसी आईडी, ये जो टिकटॉक की आईडी है, इसकी बायो के अंदर आपको नजर आ जाएगा व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। तो वहां से आप ले लीजिएगा व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप करें। तो जितने रसाइल आपको चाहिए हो आप बताइएगा, आपको हम इरसाल कर देंगे। आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दें, अपने स्कूल के बच्चों को, अपने कॉलेज के बच्चों को, आप अपनी फैक्ट्री के बड़ों को, या जहां पर भी आप हैं, तो अपने मोहल्लेदारों को, अपनी मस्जिद के नमाजियों को तकसीम करें। तो ज्यादा से ज्यादा इसकी तकसीमात होनी चाहिए ताकि सब लोगों को पता चले कि कादियानियों के साथ असल में हमारे मामलात क्या हैं, कादियानी मसला असल में है क्या। सिर्फ वो खाली खोली तो नहीं कि भाई कादियानी काफर, कादियानी काफर। असल में ये हमने अपनी कौम को बताया नहीं था कि कादियानियों का कीदा क्या है। ये पहले ही हमने अगर बताया होता ना अपनी कौम को कि मिर्ज़ा कादियानी ने भी अपने 313 साहबी बनाए थे, तो किसी की जुर्रत नहीं होनी थी, मिर्ज़ा जूनियर की जुर्रत नहीं होनी थी कि ये बता सकता कि मेरे भी 313 साहबी हैं, क्योंकि इसको पता होना था कि कौम को पता है कि ये बात तो मिर्ज़ा कादियानी ने की है। लेकिन एक बात है भाई, बात सुनने फैज साहब, मेरी बात सुन ले, मेहरबानी, मुझे पैगाम देने दे। अब बाद में कर लीजिएगा, माइक म्यूट करें। इज्जत शराफत भी कोई चीज होती है कि नहीं? मैं भी बात कर रहा हूँ, आप बीच में टोंग करके बोल पड़ते हैं। शराफत रास नहीं आती आप लोगों को। माइक इनका म्यूट करें यार, हद हो गई है, कमाल करती है आप यार। इज्जत अपने हाथ में होती है, आप अपनी इज्जत के खुद रखवाले हैं, तो शर्म कीजिए। अच्छा, बात ये है कि हमने अपनी कौम को नहीं बताया था, तो वो बेवकूफ किस्म के ते उल्लू दे पट्ठे वो शामिल हो गए मिर्ज़ा जूनियर जेल में दी सफ दे विच। समझ आई कि नहीं? कौम नूं दसो, हुणे ही दस दिओ, मर जाओ, हुण भी कुछ नहीं जे बिगड़िया। आगे जाके और बड़े फितने मिर्ज़ा जूनियर जेल में की, कोई पहला या आखिरी फितना नहीं है, 10 और खड़े होंगे अभी, क्योंकि कुर्बे क़यामत है ना। हजूर ने फरमाया है कि कुर्बे क़यामत में फितना ऐसे बरसेगा जैसे बारिश, आसमान से बारिश के कतरे बरसते, टप 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 बेदर पे। वो उस दौर से हम गुजर रहे हैं और फितने आने हैं। ये आप भूल जाए कि ये बस फितने खत्म हो गया, मिर्ज़ा जूनियर जेल में को हमने जेल में डाल दिया, कल उसको फांसी हो जाएगी तो फितना खत्म। नहीं नहीं, फितने और बढ़ने। उससे पहले पहले तैयारी कीजिए, अपने बच्चों के अकायद पुख्ता कीजिए और इनको बताइए कि कादियानी अकीदा असल में है क्या, कादियानी किस तरीके से वार करते हैं, कादियानियों के नजरियात क्या हैं, इस्लाम के ऊपर ये कैसे हमलावर हो रहे हैं, सहाबा की, बाबे बुजुर्गों की, औलिया अल्लाह की कैसे तौहीन करते हैं, इनको बताइए। ठीक है, तो इस बताने के सिलसिले में हम तो एक छोटी सी कावश कर रहे हैं। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में इसको कबूलो मंजूर फरमाए और इस पैगाम को चहार दांग आलम अल्लाह पाक पहुंचाए। देखिए, हम पूरे जग को रोशन नहीं कर सकते। मुफ्ती मुबशर शाह के पास इतनी हिम्मत नहीं है भाई कि मैं पूरे जग का अंधेरा खत्म कर दूं, लेकिन मैं अपने हिस्से का एक दीवा जला रहा हूं।
एक दीवा बस, मैं ये कर सकता हूँ। कल मुझसे सवाल हुआ ना अगर, हाँ हाँ मुबशर शाह दस होए, तेनू असी इंटरनेट लवा के दिता, तेनू असी इंटरनेट दे उत्ते मशहूर कीता, तेनू असी इन्नी वजाहत दिती, तेरे चर्चे पूरे नेट दे उत्ते कीते, तेनू तमाम किस्म दियां सहूलतां दित्तियां, तेनू किताबां भी लै के दित्तियां, तेनू प्रिंटर ते कंप्यूटर ते मोबाइल लै के दिता, और दस होए साडी खत्मे नबूवत दा काम किन्ना को कीता सी। तो उत्थे कम अज कम मैं इन्ना को दस सकना कि अल्लाह तआला मैं ते है छोटे छोटे रसाले लिख के मैं लोकां नूं दसिया, समझ आई कि नहीं। मैं अपने हिस्से दा एक दीवा जलाया है, अगों मजीद दीवे तुसां जला लेना साहिबान, वो दीवे जलाओ भाई, अपने अपने हिस्से दा एक दीवा ते जलाओ। इन्ने ही खुसरे ना बन जाओ, खुसरे ना बन जाओ कि ना इधर ते ना ही उधर, कुछ भी नहीं, सुन मन टुन ओ ना हो भाई, कुछ ना कुछ करके रखो। ते ऐसे टिकटाक नूं सब सारी दुनिया ही ना समझ लो कि एक टिकटाक ते असीं शामिल होने आ ते लिहाजा असीं बड़ी खत्मे नबूवत दी खिदमतां कर दित्तियां। कोई ये कोई खिदमत नहीं जे, समझ आई कि नहीं आई। खिदमत करो, खिदमत करो भाई, ते दिल ते जान दे नाल खिदमत करो भाई, दिल ते जान दे नाल खिदमत करो। सवाल होना जे तुहानूं, गल ज़हन च रखी होवे। हाँ भाई आसफ भाई करो भाई गल। अच्छा एक गल मैं 5 मिनट की 2 मिनट की गल ना, गल 2 मिनट अगर मिल जाते। जी फैजी साहब बोले बोले जी जी, उन सवालात का जो सवालात जहाँ पे गुफ्तगू का सिलसिला रुका था ना, वहाँ से आप अब समझिए कि गुफ्तगू हमारी दोबारा शुरू होने लगी है। आपने ये बताना है कि वो जो मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ने ये जो दावाजात किए हैं, इन सारे दावाजात की तस्दीकात अब कौन करेगा, कहाँ से तस्दीक करवाएं हम? अच्छा चलो अब हमारे पास जो इस वक्त ज़राए मौजूद है ना, वो 2 ज़राए हैं हमारे पास। जी जी, एक तो कुरान है और एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अब आप हमें बताएं कि मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ने ये जो दावाजात किए हैं, इन दावाजात की तस्दीक कुरान करता है या हदीस करती है? आपके नज़रिए में ये मिर्ज़ा साहब ने सच बोला है या झूठ बोला है? क्या आप कोई ना कोई आप अपना हमें ज़रा बताएं कि आपके दिल में क्या आता है, दिमाग में क्या आता है इस बारे में। पहली बात तो ये है कि अभी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि जी फितने और भी आने हैं, फितना ये भी है, फितना वो भी है। पहली बात है कि कलमा पे जब हमारा यकीन हो जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के अल्लाह ताला एक है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं, ठीक है। जब ये एक बात हो गई, ठीक है, ये अब आप हमारे जो मसलक हैं देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, ये 3-4 और भी हैं जो वो सारे इस कलमे को तो सारे ही मानते हैं ना, मैं भी मानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये कादियानियों को तो चलो 1 मिनट सेपरेट कर दो ना, वो तो हैं ही काफिर, ठीक है। तो आप तो एक दूसरे को जो है वो एक दूसरे को फितना कहते हो, आप एक दूसरे को जो है वो नाकिसुल अकीदा कहते हो। अब अगर सपोज कोई बाहर से बंदा आके इस्लाम कबूल करना चाहे तो वो कौन से वाला इस्लाम फॉलो करे, बरेलवियों का करे, देवबंदियों का करे या अहले हदीस का करे? क्योंकि अहले हदीस कहते हैं बरेलवी फितना है, बरेलवी कहते हैं देवबंदी फितना है, ठीक है। वो कहते हैं जी बरेलवी जो है वो चिश्ती रसूलुल्लाह कहते हैं, ये भी मतलब उन्होंने मतलब खत्म नबूवत का इनकार। अगर आपकी बात हो गई है नियाजी भाई, और एक आखिरी बात, अगर आपकी बात हो गई है तो एक और लास्ट एक आखिरी बात, 1 मिनट। और दूसरा, जब हम सिलेक्टिव पकड़ेंगे ना चीज़ों को कि अब दूसरे कीदे के बंदे को पकड़ लिया, इसने जी गुस्ताखी कर दी है, ठीक है, तो अपने कीदे के बंदों को हम रिलैक्सेशन दे देते हैं। अब फैजी भाई नीचे बड़े कॉलर बैठे हैं, फैजी भाई नीचे बड़े कॉलर बैठे हैं, बात का ये जवाब देना है आपने। बस ये आपके जवाब मैं दूं, मैं दे दूं, मैं कह रहा हूँ आपकी बात का जवाब दे दूं लास्ट 1 मिनट 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड। और जो खादम सैंडिस साहब ने बोला था कि वहाबियों की जान की कोई एहतराम नहीं है, तो वो क्या गुस्ताखी में नहीं आता? उसके ऊपर पर्चा नहीं होना चाहिए था? उधर आप लोग कोई भी नहीं बोले। अच्छा अजान ना वहाबी की होती है ना देवबंदी की होती है, वो तो एक जैसी है सबकी अजान। अच्छा भाई बात सुने, ये जो अभी आप कह रहे हैं ना कि आप उनको ये कहते हैं वो कहते हैं, तो मेरे ख्याल से आप अपना घर पढ़ के हेलो 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 हेलो
ਬਰਾੜ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀ ਜੇ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਬਰਾੜ ਡਿੱਗਣ इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।